Dear students, once again Anup sir here with Guru Mantra Logics on the behalf of Divine Education Institute, and today's topic is network एंड टोपोलॉजी। और आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि डाटा ज़्यादा है समझाने के लिए। तो जल्दी समझते रहिए, कैप्चर कीजिए और जहाँ आपको प्रॉब्लम होती है आप वहाँ से पॉज करके वापस उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लासेस की ओर अपने। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ योर नेटवर्क एंड व्हाट इज़ द काइंड ऑफ व्हाट इज़ द नेटवर्क इज़ एक्चुअली, as you know already, that network is where when we create two or more computers together for sharing information or data or collect or any type of hardware or software. It means a network is created for sharing information or hardware. Sometimes it is also used for sharing software also, because if the such kind of situation created that there is need to share server, then there we create a server. After creating server, we upload a software on that, and the computer system that is also known as clients. क्लाइंट्स कहते हैं हम उस कंप्यूटर को जो सर्वर से अदर फर्दर कनेक्ट हो सिस्टम होते हैं। तो जितने भी क्लाइंट सिस्टम्स हैं वो सर्वर से उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, जो कभी कभी हमारे लिए बहुत आसान नहीं होता कि हम उसको हर एक कंप्यूटर सिस्टम पे अपलोड कर पाएँ या इंस्टॉल कर पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज़, अब बात करेंगे हम नेटवर्क टॉपोलॉजीज़ के बारे में। तो उससे पहले टॉपोलॉजी का मीनिंग क्या है मैंने बताया था कि जो ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है किसी भी टॉपोलॉजी के बारे में वो बताता है। तो टॉपोलॉजी क्या है? टॉपोलॉजी अगर हम बात करें तो हमने किस तरह का आइडिया यूज़ किया है, किस तरह का हमने नेटवर्क लेयर बिछा रहे हैं, या हम किस तरह का डिज़ाइन में क्रिएट करने वाले हैं किसी भी नेटवर्क को लगाने के लिए, हम उसको बोलते हैं टॉपोलॉजी। एंड द टाइप्स ऑफ टॉपोलॉजी कंटेन्स peer-to-peer topology, bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, tree topology, and hybrid topology. And you are looking here the figures of all the kinds of topologies. Okay, for this is peer-to-peer, this is bus, this is ring, this is star topology, this is tree topology, and mesh topology. Last one is your hybrid topology. And today we will learn here about the different kinds of these topologies also, and their advantages and disadvantages also. Now going to the first point is peer-to-peer topology. So let's start. This is peer-to-peer topology. In peer-to-peer topology, a peer-to-peer network is the peers. The peers are the computer system which are connected to each other via the internet. File can be shared directly between systems on a network without the need of a central server. In other words, each computer on a P2P network becomes a file server as well as a client. As you are looking here the figure, as behalf it, you are looking that this is also peer, this is also peer. If this system is sending files here, it means this is server. If this system is file sending the file here, it on that condition this system is a server. In both of condition, one system is server and second one is the client. In such kinds of network, we connect system directly to each other. There is no need for a large or huge maintenance in this. And if we're talking about here the advantages in such kinds of network, P2P network is very quick to share files and reduce the costs of investment, because there is no much separate maintenance systems for maintaining such type of or device to maintain such type of network. और इस कंडीशन में एक जो चीज़ ये है कि P2P जो नेटवर्क है वो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और इसमें हम किसी भी सिस्टम को ईजिली इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसका अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई भी कंप्यूटर कभी भी एक्सेस किया जा सकता है, उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी फेल होने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, और इसमें कोई भी सेंट्रल सर्वर नहीं है कि हम ये बोल सकें कि एक सर्वर हमारे पास में सेंट्रल है और हम सभी सिस्टम्स जो भी कनेक्टेड हैं उस सर्वर से कि वो फिर अपनी सभी इन्फॉर्मेशन सर्वर में अपलोड किया हुआ है जहाँ हमारा डाटा पूरी तरह से सेफ़ है। फॉर इन सच टाइप ऑफ कंडीशंस एवरी सिस्टम हैड टू मेंटेन देयर ओन backups. So this is a disadvantage of such kinds of network. And next one is we are going for bus topology.
बस टॉपोलॉजी जो कि सबसे ज़्यादा किसी भी इंस्टीट्यूशन वगैरह या एजुकेशन सिस्टम्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको बाद में भी। पहले पढ़ लीजिए क्या है ये। बस टॉपोलॉजी इज़ अ टॉपोलॉजी for a local agent network in which all the nodes are connected in a single cable, and the cable to which the nodes connect is cable a backbone. If the backbone is broken, the entire segment fails. तो इसके पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने से पहले थोड़ा सा इसको मैं समझा दूँ आपको मैं इस नेटवर्क के बारे में। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये है पहले एक सर्वर, और ये सभी क्या हमारे वर्क स्टेशन या फिर हमारे क्लाइंट्स हैं, जहाँ पर कि एक हार्डवेयर सिस्टम भी है, प्रिंटर लगाया हुआ है। तो ये सभी सिस्टम्स प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इस बैकबोन से कनेक्ट, ये हमारी बैकबोन है जो मेन केबल है इसकी। और जिस जगह से ये कनेक्ट होते हैं, ये हमारे होते हैं नोड्स, ये हमारे नोड्स जहाँ से हमने सिस्टम्स को कनेक्ट किया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर ये हम बात करें तो देखो, ईजी से इंस्टॉल है, मेंटेनेंस भी इसका ज़्यादा हाई नहीं है, और इसमें सबसे कम केबल का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेटवर्क है वो एक ही केबल से कनेक्ट है। हर एक पर्टिकुलर सिस्टम को सेपरेट केबल की नीड नहीं है। इसका डिसएडवांटेज की हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में आप समझिए इस चीज़ को कि अगर किसी भी कंडीशन के अंदर कुछ कभी ऐसी बात हो जाए क्या कि ये जो केबल है इस जगह से कट जाए या क्रॉस हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसमें से डैमेज हो जाए, तो इसके जो आगे का नेटवर्क है ये उस नेटवर्क से बाहर हो जाएगा, मेन नेटवर्क से बाहर हो जाएगा। या मैं ये कह लूँ अगर ये पूरी वायर ही ख़राब हो जाए तो पूरा ये नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, सभी सिस्टम्स काम करना बंद कर देंगे, नेटवर्क में उनका फिर कोई रोल नहीं रह जाएगा, ये पूरा नेटवर्क ही ख़त्म हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट जो इसमें है वो है फॉल्ट डिटेक्शन का। अगर केबल में कोई फॉल्ट नहीं है तो हम इजीली फॉल्ट नहीं चेक कर सकते किस जगह पे इसमें फॉल्ट है। अगर बैकबोन ख़राब है तो पूरा सिस्टम ही ख़राब है, खैर उसकी तो बात ही हम नहीं करते भी। अब आगे बढ़ते हैं जो कि है रिंग टॉपोलॉजी। रिंग टॉपोलॉजी को समझना थोड़ा पड़ेगा आपको, उसको यहाँ ध्यान से बहुत। इन रिंग टॉपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड विद टू डिवाइसेस ऑन ईदर साइड ऑफ इट। ये दोनों ही तरफ से वर्क करता है, ये लेफ़्ट से भी जाएगा, राइट से भी जाएगा। और जिसमें यहाँ टोकन को आप फिगर में देख रहे हैं, टोकन के बारे में आपको बताऊँगा अभी। टोकन एक्चुअली होते हैं हमारे पैकेट्स के बारे में मैंने पहले पढ़ाया होगा, यार नहीं पता तो बता दूँ मैं। पैकेट हमारे होते हैं कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर के अंदर, वो अगर लार्ज स्केल में है तो पैकेट्स में, चंक्स में डिवाइड हो जाती है, और एक पैकेट के अंदर 1500 तक कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बड़ी फाइल वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाती है, इसको हम पैकेट बोलते हैं, फिर टोकन्स बोलते हैं। यही टोकन यहाँ दिखाया हुआ है जो कि आगे ट्रेवल करेगा, जिसमें ये एरो की हेल्प से पूरे नेटवर्क को दिखाया हुआ है। आगे चलते हैं इसमें। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्स ए रिंग, thus it is known as ring topology. If a device wants to send data to another device, then it sends the data in one direction. Each device in ring topology has a repeater. If the received data is intended for other device, then repeater forwards this data until the intended device receive it. It means कि अगर किसी सिस्टम ने अगर इस सिस्टम ने कोई पैकेट यहाँ अगर भेजना है इसको, तो पहले वो यहाँ जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ आएगा। ठीक है, इसका जो रिपीटर है वो इसको आगे सेंड करेगा। और ये पता कैसे चलेगा? एक्चुअली जब भी हम कोई फाइल सेंड करते हैं तो अपने साथ एक हेडर लेकर निकलता है कि वो उसके डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, सोर्स पॉइंट क्या है, जिससे कि किसी अपने डेस्टिनेशन पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डायरेक्शन में आएगा, ये जाएगा वन वे में ही, या तो इधर से आए, और ये सिंगल वे में है आपका, डबल वे में भी होता है, जिसमें कि कोई भी सिस्टम दोनों तरफ से, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज दोनों तरफ से वर्क करता है। ये ऐसे भी जा सकता है। ठीक है, तो दो तरह के सिस्टम्स में होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जो दोनों ही वे में ये डाटा को सेंड कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज वो ये है कि ईजी टू इंस्टॉल है और इसको मैनेज करना ईजी है। वजह है इसमें जैसे कि किसी सिस्टम को ऐड करना और रिमूव करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि लिंक पहले से बने हुए होते हैं, सिर्फ वहाँ से सिस्टम को हमें हटा कर लगाना होता है। क्योंकि पूरा सेटअप जो बनता है रिंग का वो अलग से बनता है और सिस्टम को उसमें आउटसोर्स से लगाया जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट
स्ट्रिक्टली फॉलोड होता है, अगर मैं ये कहूँ डायरेक्टली, क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर फेल होता है तो पता चल जाता है कहीं ना कहीं लूप होल है सिक्योरिटी के अंदर। क्योंकि जब तक एक पूरा लूप कंप्लीट नहीं होगा, लूप मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा, तब तक कोई भी टोकन इस सिस्टम से ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सबसे पहले नेटवर्क का एक्सेस होना ज़रूरी है। नेटवर्क के एक्सेस होने के बाद ही कोई सिस्टम आगे वर्क करेगा या कोई भी फाइल आगे सेंड होगी। मैं फिर से बता दूं पहले आपको कि इसमें पहले पूरे लूप का कंप्लीट होना ज़रूरी है, उसका नेटवर्क एक्सेस होता है, उसके बाद फाइल्स हमारे आगे या टोकन्स आगे हमारे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो इसका डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो इसमें जो वेल्डिंग फेलियर है वो फील हो सकता है कभी, और जब अगर फील होगा कि कहीं वेल्डिंग फेलियर है तो पूरा ही नेटवर्क जो है वो डैमेज या ब्रोक आउट हो सकता है, क्योंकि सिग्नल पास होगा नहीं। जब सिग्नल ट्रेवल नहीं करेगा तो फिर वो पूरा लूप नहीं बनेगा, और जब पूरा लूप नहीं बनेगा तो क्या होगा, नेटवर्क फेल हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी इसमें होता ही है कि डाटा ट्रैफिक काफ़ी इशू बन जाता है इसके अंदर। वजह इसकी ये है क्योंकि जब तक पूरा एक सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसमें डाटा आगे ट्रांसफ़र होगा नहीं। तो इसके लिए कभी कभी अगर सभी सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं तो कभी इसमें डाटा ट्रैफिक कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अब स्टार टॉपोलॉजी की तरफ। तो स्टार टॉपोलॉजी एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपोलॉजी नेटवर्क है। लैन के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो या तो होते हैं बस टॉपोलॉजी नेटवर्क या स्टार टॉपोलॉजी नेटवर्क। स्टार टॉपोलॉजी नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं ऑफिस के अंदर। इसकी खासियत के बारे में आपको बताऊंगा मैं भी। स्टार टॉपोलॉजी ईच डिवाइस in the network is connected to a central device that is called hub. As you are looking in the figure, this is hub. hub क्या है, hub के अंदर नोड्स होते हैं। इसी नोड से हम सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसमें हम अदर हार्डवेयर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं प्रिंटर। अगर ये प्रिंटर बहुत कॉस्टली है और ये आसान नहीं कि सभी ऑफिस के अंदर उसको इंस्टॉल किया जा सके। अब ये मान लीजिए कि ये अलग ऑफिस में है सिस्टम में, ये अलग ऑफिस सिस्टम में, ये सिस्टम अलग ऑफिस में, ये अलग ऑफिस में है, और एक सिंगल एक प्रिंटर है, तो ये सभी अलग अलग ऑफिस से इस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली हब से कनेक्ट होते हैं। ठीक, और हब से कनेक्ट होने की कंडीशन में अगर एक कंप्यूटर ख़राब होता है या इसके केबल में भी कोई डैमेज आता है तो बाकी सभी सिस्टम जो वो नेटवर्क में प्रॉपर वर्क करते रहेंगे। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, दूसरा एडवांटेज ये है कि इसको इंस्टॉल करना आसान है। इसका मेंटेनेंस भी कोई बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। लेकिन इसके अगर मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूं तो इसके डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट ये है कि अगर गलती से भी जो हब है सेंटर में अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो पूरा ही नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हब के मेंटेनेंस की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको मैं टाइम टू टाइम चेक करते रहना होता है कि हब में कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर हब के अंदर प्रॉब्लम आई तो पूरा ही नेटवर्क ये डैमेज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मैश टॉपोलॉजी। मैश टॉपोलॉजी के अंदर देखिए मैंने दो फिगर यहाँ दी हुई है, एक इसमें पार्शियली मैश है और एक इसमें कम्प्लीटली मैश है। तो मैश टॉपोलॉजी है क्या, इन मैश टॉपोलॉजी ईच एंड एवरी सिस्टम गेट्स कनेक्ट टू विद अदर सिस्टम्स। द नेटवर्क ऑफ मैश टॉपोलॉजी connect all the systems in with each other. In astrology, its device is connected to every other device on the network through a dedicated point-to-point link. जैसे पहले आया था पीर टू पीर, ऐसे ये पीर टू पीर का एक पूरा जंक्शन है समझिए, जहाँ बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आपस में कनेक्ट हैं। When say dedicated, it means that the link only carries data for the two connected devices only. टू कनेक्ट डिवाइस मीन्स एक सिस्टम जो सर्वर है इसमें और दूसरा इसमें रिसीवर है। अगर डाटा यहाँ इससे सेंड हो रहा है तो सिर्फ इन दोनों बीच में ही कनेक्शन है, लिंक है, और किसी के बीच में भी लिंक क्रिएट नहीं हो रहा है। इन मैश टॉपोलॉजी ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू ईच अदर। इट मीन्स दे ऑल कैन शेयर द इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। अब आप यहाँ ये देख रहे हैं ये है पार्शियली, जैसा मैंने बोला ये हमारा पार्शियल मैश टॉपोलॉजी नेटवर्क है। जैसे ये सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सिस्टम इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है और इससे कनेक्ट है, लेकिन ये इससे कनेक्ट नहीं है और ये इससे भी कनेक्ट नहीं है। तो ये मैश टॉपोलॉजी है, ये पार्शियल वे में है, कंप्लीटली फिगर में नहीं है। कंप्लीट
मैश टोपोलॉजी नेटवर्क वो ये है, यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी और इससे भी है। ठीक ऐसे ही बाकी अदर सिस्टम भी हर एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके एडवांटेज के बारे में, तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि सभी सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पर डाटा ट्रैफिक के क्रिएट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो दो डिवाइस हैं सिर्फ उनके बीच में ही डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और दूसरा बड़ा इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रोबोस्ट वे में है कि अगर कोई एक नेटवर्क या किसी एक सिस्टम के अंदर या किसी एक P2P नेटवर्क में प्रॉब्लम है, तो बाकी और जो सिस्टम है नेटवर्क के अंदर वो अपने प्रॉपर वर्क करते रहेंगे, उन पर इस तरह के किसी भी सिचुएशन या प्रॉब्लम का कोई असर नहीं होगा, बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर हेट्रोजीनियस दे वर्क सेपरेटली। तो जबकि वो सेपरेटली वर्क करें तो एक दूसरे के वर्क का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका डिसएडवांटेज ये है कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें होती है, क्योंकि सभी सिस्टम्स एक दूसरे डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा खर्च जो आएगा वो आएगा केबलिंग पर लेकर के, ठीक है, वायर्ड कनेक्शन के। और एक सबसे बड़ा हेडेक भी ये है कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। और इस तरह से इसमें जैसा आप जानते हैं पहले P2P नेटवर्क है, तो इसमें इनपुट और आउटपुट रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। पता नहीं किस तरह के इनपुट के लिए किस तरह के डिवाइस की नीड हो, या किस तरह के आउटपुट के लिए किस तरह की नीड हो, तो इनपुट आउटपुट जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब आगे बढ़ते हैं, वो है ट्री टोपोलॉजी। सॉरी सारा ही आगे बढ़ते हैं ट्री टोपोलॉजी की तरफ। ट्री टोपोलॉजी के अंदर आपको दो चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर मैं। ये एक हमारा एक्चुअली बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक सिस्टम से फर्दर सिस्टम्स कनेक्ट होते हैं, उन फर्दर सिस्टम से फर्दर सिस्टम कनेक्ट होते हैं, तो इस तरह से हमारा ट्री का सिस्टम बनता है। और ट्री का सिस्टम, इसको ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूँ। जैसा आप देख रहे हैं पहला सिस्टम ये हमारा है रूट, इसको हम बोलते हैं रूट। अब रूट से हमारे बनती हैं ब्रांचेस, तो ये जो नीचे के दो सिस्टम हैं ये हमारे क्या हैं, ब्रांचेस। और नीचे जो हैं वो इसकी क्या हैं, लीव्स। ये सब क्या हैं, लीव्स। ये लीफ हैं। ऐसे ही और भी होता है, तो वो सिस्टम इस तरह से बढ़ता रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ पर मैं दूसरे फिगर में आपको दिखा रहा हूँ। सपोज दैट ये एक छोटा सा यहाँ पर नेटवर्क बन गया, एक सेपरेट नेटवर्क है और एक सेपरेट नेटवर्क है जो बस टोपोलॉजी को फॉलो कर रहा है। अब इन दोनों नेटवर्क को हमने इसकी हेल्प से कनेक्ट कर दिया। जब ये नहीं था तब तक ये सेपरेट नेटवर्क थे, लेकिन जैसे हमने इसको यहाँ लगाया तो ये क्या हुआ, एक अलग नेटवर्क बन गया पूरा, जो कि बड़ा हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये नेटवर्क यहाँ अलग था और ये अलग था, इन दोनों को हमने इस कनेक्शन से सिस्टम से कनेक्ट करके एक बड़े नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया। ये अलग हमारे स्टार टोपोलॉजी को फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं और बस टोपोलॉजी को फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने इनको सेपरेटली सेपरेटली ये सिस्टम इससे कनेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा सिस्टम बढ़ता चला जाता है। और इसी तरह से ये इस सिस्टम से आगे फर्दर और सिस्टम भी बहुत कनेक्ट होंगे, इससे आगे बहुत सिस्टम कनेक्ट होंगे। तो इस तरह से क्या है ये, अब जैसे यहाँ पर है ये, यहाँ पर और सिस्टम भी यहाँ इससे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ये है, यहाँ से सिस्टम इससे और कनेक्ट होंगे, तो ये इस तरह से टोपोलॉजी आगे बढ़ती, ये नेटवर्क आगे बढ़ता चला जाएगा। ए ट्री नेटवर्क और स्टार बस नेटवर्क इज ए हाइब्रिड नेटवर्क टोपोलॉजी इन विच स्टार नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड विया बस नेटवर्क। ट्री नेटवर्क आर हायरार्किकल, हायरार्किकल बोलते हैं कि पहले एक से दो कनेक्ट हुए, अब इस एक से और कनेक्ट हुए, इससे और कनेक्ट हुए, अब इनसे और आगे कनेक्ट होंगे, अब इनसे आगे और कनेक्ट, एक हायरार्किकल सिस्टम बनता चला जाता है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं हायरार्किकल सिस्टम। Tree topology is a special type of structure in which many connected elements are arranged like the branches of a tree, जैसा मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ट्री टोपोलॉजी का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर नेटवर्क, जो इसमें आसानी से हो जाता है।
जैसा आपने देखा कि हमने सेपरेट नेटवर्क को कंबाइन करके बड़ा नेटवर्क बनाया, तो इसमें जो कम्युनिकेशन है वो इजीली एक बड़े नेटवर्क में हो सकता है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है कि हायरार्किकल नेटवर्क, जो कि दूसरे सिस्टम को या दूसरे नेटवर्क को डैमेज नहीं करता। अब यहाँ समझने वाली चीज़ ये है, मैं आपको समझा दूँ फिर से, कि जैसा आपने देखा कि ये एक अलग नेटवर्क है जो कि इस सिस्टम के थ्रू ये दो नेटवर्क कनेक्ट हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में, तो ये जो नेटवर्क है ये प्रॉपर अपना वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो एक पार्शियल जो सेपरेट नेटवर्क है उसका इफेक्ट दूसरे नेटवर्क को नहीं पड़ता। हाँ, उस नेटवर्क के कंप्यूटर पे तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन दूसरे नेटवर्क के जो पार्ट हैं जो कि अभी तक ऊपर जो कनेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ से इससे कनेक्ट हुआ, ये यहाँ इससे कनेक्ट हुआ, अब जो इतना जो हिस्सा है इसका, ये तो इफेक्ट हो सकते हैं, इस नेटवर्क के अंदर जो कंप्यूटर वो तो इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये इफेक्ट नहीं होगा, ये इफेक्ट नहीं होगा, और इससे ऊपर अगर कोई और सिस्टम कनेक्ट है तो वो इफेक्ट नहीं होगा। और बात करूँ इसके मैं डिसएडवांटेज के बारे में, तो इसके डिसएडवांटेज में ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा होती है यूज़ और नीड जो होती है वो केबल की होती है। मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर रूट स्ट्रक्चर ही ख़त्म हो गया, या जो ये बैकबोन केबल है अगर यहाँ इसमें दिक्कत आ गई, तो ये नेटवर्क भी बंद हो जाएगा और ये नेटवर्क भी बंद हो जाएगा इसके थ्रू। मतलब अगर इसके ऊपर कोई सिस्टम है तो ये फिर इस नेटवर्क से और इस नेटवर्क से संपर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे संपर्क करने के लिए और इससे संपर्क करने के लिए इसकी नीड थी पहले। तो इसमें बैकबोन अगर किसी भी तरह के खतरे में आ जाए या उसमें डैमेज हो जाए तो पूरा ही नेटवर्क भी ये डैमेज भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन है नेटवर्क्स का, इसमें हर तरह के नेटवर्क को आपस में यूज़ कर सकते हैं। मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं तो हम एक रूम के अंदर भी एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास एक वाईफाई डिवाइस है, उससे मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट है, मेरा मोबाइल भी कनेक्ट है, मेरा डेस्कटॉप भी कनेक्ट है, तो वहाँ को एक नेटवर्क सेटअप प्रॉपर बन नहीं पा रहा जो वायरलेस फॉर्म में है, तो वो भी मेरा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। ठीक है, हाइब्रिड का मतलब एक मिक्सर होता है, एक मिक्स कंडीशन हो गई जहाँ पे हम एक से ज़्यादा टोपोलॉजी को आपस में मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं, एक नया नेटवर्क बना रहे हैं। तो बात करते हैं, देखो लाइंस पे जाते हैं भी, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। फॉर एग्जांपल ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड मैच टोपोलॉजी ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड टोपोलॉजी। और जैसा आप यहाँ भी देख रहे हैं, अभी मैंने स्टार नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, बस नेटवर्क यूज़ किया हुआ है, और एक रिंग नेटवर्क भी यूज़ किया हुआ है। और अगर मैं इन सब को आपस में कनेक्ट कर दूँ, यहाँ से इस जगह से मैं कनेक्ट कर दूँ, तो ये क्या हुआ, मेरा एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये मेरा बनता है यहाँ से हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, वर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड जैसा आप देख रहे हैं, ये लिखा है हाइब्रिड यहाँ पर। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का अब मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बात करूँ तो इसमें जो एडवांटेज है कि इसमें हम किसी भी तरह के नेटवर्क को इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टोपोलॉजी को आसानी से हम कैरी भी कर सकते हैं। और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें जो है किसी भी तरह के फॉल्ट को फाइंड आउट करना वो डिफ़िकल्ट है, इसको इंस्टॉल करना तो डिफ़िकल्ट है। वजह ये कि हम डिफरेंट काइंड से टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद इसका डिज़ाइन, तो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होने के वजह से इसको मेंटेनेंस ज़्यादा रखना पड़ता है, इसके मेंटेनेंस पर एक्सपेंस ज़्यादा होगा। तो ये थी आपकी आज की सारी टोपोलॉजी और उसके सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए मैंने, नेटवर्क आपको समझा दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कि कुछ लोग स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है सर पूरा आप अंग्रेजी में बोल देते हैं तो समझ में नहीं आता, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए, इसलिए आज मैंने हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन किया है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है किसी को तो आप मुझे सीधे कमेंट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।